Hello everyone, Vinita this side. Welcome back to my channel. So, class 9, the book Moments, and the first chapter, The Lost Child, we are going to start. So, actually, dear students, children, in this chapter, The Lost Child, that is a story of a small child who gets lost in a fair. He had gone with his parents, the fair, but loses them when he gets engrossed in looking at a roundabout swing. The story highlights the bond of love and the affection that the child shares with his parents. So, before losing them, he had been demanding different things like sweets, balloons, as usual, like children did, flowers, swings, etc. But once he loses them, he is picked up by a stranger, and the stranger tries to quieten the child by offering him all things that he had demanded from his parents. But the child does not want them anymore. So he wants his parents first. So I hope you will understand a little bit that what is actually given in that chapter, the lost child. So now moving ahead, we are going to start the reading of the lost child from your book Moments from class ninth, chapter number 1, and the name is The Lost Child. I hope, yes. Now, a child goes to a fair with his parents. Child, एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ एक मेले में जाता है. ओके, देन ही इज हैप्पी एंड एक्साइटेड. वो बहुत खुश है, बहुत एक्साइटेड है. एंड wants the sweets and toys displayed there. और हैप्पी है, खुश है, एक्साइटेड है, एंड wants the sweets. वो स्वीट्स चाहता है. एंड टॉयज displayed there. जो टॉयज वहां पर उसे दिख रहे हैं वो लेना चाहता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स कुछ भी उसको खरीद के नहीं देते. Why then does he refuse when someone else offers them to him? लेकिन अगर कोई और उसको ये चीजें ऑफर करता है कि वो कुछ भी चाहे खरीद सकता है, तो वो मना क्यों कर देता है? Why he does that? So, for getting the answer of this question, we need to read, we need to understand the chapter. So, let's move. Okay. So, here we do have the chapter. It was the festival of spring. ये वसंत ऋतु का एक त्योहार था. From the wintry shades of narrow lanes and alleys emerged a gaily clad humanity. From the wintry shades, तंग गली गलियारों में wintry बहुत शीतल shades छाया. Narrow lanes and alleys वो तंग गलियों में, तंग गलियारों में जब शीतल ठंडी ठंडी पर छाई, शीतल छाया. Emerged दिखाई दे रही थी a gaily clad humanity. भड़कीले कपड़े पहने हुए लोगों के बीच में. Some walked, some rode on horses, some walked. कुछ चल रहे थे. Some rode on horses. कुछ राइडिंग कर रहे थे हॉर्स पे. Others sat, दूसरे बैठे हुए थे. Being carried in bamboo and bullock carts. Being carried in bamboo. कुछ लोग बैठे हुए ले जा रहे थे. कुछ बांस पर, कुछ गाड़ियों में थे, कार्ट्स पे. One little boy ran between his father's leg, brimming over his with life and laughter. एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की टांगों के बीच में, जीवन और लाफ्टर हास्य से भरपूर, ran दौड़ा जा रहा था.
like you can see in this picture. Okay, then we do have come child come, आओ बच्चे आओ, called his parents, उसके parents ने उसको बुलाया. As he lagged behind, क्योंकि वो बार बार पीछे छूट जाता था, fascinated by the toys, क्योंकि वो अट्रैक्ट हो रहा था उन खिलौनों की तरफ, that lined the way, जो लाइन में शॉप्स के पे लगे हुए थे. He hurried towards his parents, वो जल्दी से भागता हुआ अपने पेरेंट्स के पास पहुंचा. His feet obedient to their call, कि जैसे ही वो उसको बुलाते और वो भागकर उनके पास चला जाता, that कि वो बहुत आज्ञाकारी पैर हैं उसके. And his eyes still lingering on the receding toys, लेकिन उसकी जो आंखें हैं ना वो अभी भी जो पीछे छूट रहे हैं ना टॉयज उनकी तरफ हैं. As he came to where they had stopped to wait for him, as he came, जैसे ही वो आते हैं, to where they had stopped to wait for him, as he came to where they had stopped to wait for him, जब वो वहां आया और वो उसकी प्रतीक्षा के लिए रुक गए. he could not suppress the desire of his heart, वो अपनी इच्छा को ना अपने दिल में दबा नहीं पा रहा था. even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, जबकि उसको साफ बिल्कुल ही मनाही जो थी उनके घूरने से अच्छे से पता चल रहा था कि वो उसको लेके नहीं देंगे, बट वो चाह के भी अपनी इच्छा को दबा नहीं पा रहा था. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, उसने थोड़ा सा विनम्र निवेदन किया, दैट आई वॉन्ट दैट टॉय, कि मुझे वो टॉय चाहिए. His father looked at him red-eyed in his familiar parents way, उसके फादर उसकी तरफ देख रहे थे red-eyed, लाल आंखों से, in his familiar parents way, बिल्कुल जैसे होते हैं ना क्रूड लोग, यानी कि जो बहुत ही गुस्सेल होते हैं उस तरह से उसको लाल आंखों से देख रहे थे उसके फादर. His mother melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold. उसकी माँ जो दिन की मुक्त आत्मा से मेल्ट हो गई थी, वो नरम स्वभाव की थी और उसे अपनी उंगली पकड़ाते हुए बोली, लुक चाइल्ड, व्हाट इज बिफोर यू, देखो आगे तुम्हारे सामने कुछ और आ रहा है, कुछ और आएगा. इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये एक पीले सरसों से भरा खेत था. पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, इतना पीला कि जैसे सोने के जैसा हो. एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, और ये एक समतल एक जमीन पर मीलों मीलों तक था, वो बहुत लंबा चौड़ा था वो खेत. A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings. ड्रैगनफ्लाइज, टिड्डियों का एक दल, किसी अकेली काली मधुमक्खी के जो पीछे है ना, मतलब वो तलाश में लगा हुआ, मतलब उड़ान ले रहा था. ब्लैक बी बटरफ्लाई, स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, वो उसकी काटते हुए चमकीले रंग के पंखों पर शोर करते हुए उसके ऊपर फ्लावर्स के ऊपर उड़ रहे थे स्वीटनेस के लिए. द चाइल्ड followed them in the air with his gaze, और बच्चा जो है ना वो उसने अपनी एकटक नजर को अपनी हवा में इनका पीछा तब तक किया, till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it. उनका पीछा तब तक किया जब तक उसने उनमें से एक के पंख को स्थिर नहीं कर लिया और वो टिक नहीं गई, और उसने इसे पकड़ने की बहुत ही कोशिश की. बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन वो वहां पे क्या हुआ था, फड़फड़ा रही थी, फड़फड़ाती हुई. फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, हवा में चली गई. आई डोंट हैव. व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन इट हिज हैंड्स, जब उसने ऑलमोस्ट उसको पकड़ लिया, देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, बच्चे अब आ जाओ, फुटपाथ पे दोबारा से आ जाओ. He ran towards his parents, Gilly, and walked uh, abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were steaming out from their hiding places to enjoy the sunshine.
ही ran towards the parents. वो प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर गया and walked abreast of them. और कुछ देर तक उससे सट के बिल्कुल चलने लगा. Soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. तो भी पगडंडियों के किनारे जो उसकी भारी संख्या में धूप का आनंद लेते हुए छोटे मोटे मकोड़े जो हैं वो बाहर निकल के आ रहे थे और उनसे अट्रैक्ट होकर वो पीछे छूटता जा रहा था. ठीक है. अब वो कोशिश तो कर रहा था कि वो ध्यान अपने पेरेंट्स पे लगाए, बट जो चीजें उसको अट्रैक्ट कर रही थी ना, थोड़ी देर तो वो चला उनके पीछे पीछे, लेकिन वो फिर से क्या हो गया, छूट गया, उसका अट्रैक्शन वहां बन गया और वो पीछे छूट गया. Then again, come child, come, his parents called from the shade of a grove where they had seated themselves on the edge of a well, and he ran towards him. अब वो उसके माता पिता ने वो पेड़ों के एक झुंड की छाया के नीचे से उसको बुलाया जहाँ पे वो एक कुएं की छत पर बैठे हुए थे और वो उनकी तरफ दौड़कर आ गया. चलो नेक्स्ट, अब तो वो अभी तक तो वो है अपने पेरेंट्स के साथ. But a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. तो जैसे ही वो उस पेड़ वहां पे आया ना, पेड़ों की झुंड झुंड में से नीचे आया, तो फर्शों फूलों की ना उसके ऊपर क्या होने लग गई, बारिश होने लग गई. एंड forgetting his parents, वो अपने पेरेंट्स को भूल गया. he began to gather the raining petals in his hands. वो क्या करने लग गया, उन बरसती हुई पगडंडियों को अपने हाथों में, पंखुड़ियों को जो फ्लावर्स की थी उसने उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया. बट लो ही हियर द cooing of doves and ran towards his parents. लेकिन देखो, उसने वक्ताओं को का कूकना जैसे उसने डोव्स डव्स की आवाज सुनी, तो फिर से अपने पेरेंट्स की तरफ चिल्लाता हुआ, शाउटिंग करता हुआ अपने पेरेंट्स को मतलब दिखाने लग गया कि द डव देखो, बत्तख है, फाख्ता है. The raining petals dropped from his forgotten hands. अब जो रेनिंग पेटल्स थे, यानी कि जो बरसती हुई पंखुड़ियां थी फूलों की, वो उसके हाथों से टूट गई. Then again, come child, come, they called to the child, who had now gone running in the wide capers round the banyan tree. उन्होंने फिर से अपने बच्चे को बुलाया, जो कि अब बरगद के पेड़ के चारों ओर गोल गोल उछल कूद कर रहा था. And the gathering him up, they took the narrow, winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उसको साथ लेकर उन्होंने फिर से तंग लहरेदार पगडंडियों को पकड़ा, जो कि सरसों के खेत से मेले की ओर जा रही थी. अब वहां तक फिर से पहुंच गए, उन फील्ड्स को क्रॉस करते हुए फेयर में. As they neared the village, the child could see many other footpaths full of thrones covering to the whirlpool to the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. अब जैसे ही वो अपने गांव के पास पहुंचे, तो बच्चा जो था, छोटा बच्चा जो था, वो और पगडंडियों को देख सकता था और वो भारी भीड़ से भरी थी और वो मेले की ओर जो है वो भंवर में की ओर जा रहे थे. ओके. अब तो ठीक है कि चलो वो जा रहे हैं, बट उसने अचानक ही सबसे ऐसे ही चीज को देखा जिसमें वो इतना अट्रैक्ट हो गया, ऐसे प्रविष्ट हो गया कि उसको कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था. A sweet meat seller hopped. एक मिठाई बेचने वाला चिल्ला रहा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, at the corner of the entrance, प्रवेश द्वार के कोने पे. And the crowd pressed around his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. बहुत ही कलर, जो अलग अलग कलर की जो स्वीट्स थी ना, वो उसको सजाकर लगाई गई थी, जिसमें वो जो कुछ सोने और चांदी के रंगों की जैसे उनको सजा रखा था, और उसके नीचे बहुत ही लोग जो थे ना वो इकट्ठे खड़े हुए थे. The child stared open-eyed and his mouth watering for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi. The child, बच्चे ने क्या किया, ओपन आइड, खुली आंखों से उसको देखना शुरू कर दिया और उसके मुंह में पानी आने लग गया बर्फी को देखकर. बट दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी, उसको वो बर्फी चाहिए थी. ही स्लोली मर्मर्ड, वो मतलब फुसफुसा रहा था.
but he half knew as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. But he knew, but he half knew as he begged that कि उसके जो लेकिन उसको आधे मन से ये वो पता था कि उसकी प्रार्थना को कोई सुनेगा नहीं, कोई ध्यान नहीं देगा उसकी बात की तरफ, क्योंकि उसके माता पिता तो कैसे हैं, या ग्रीडी, ही वाज ग्रीडी, ठीक है। तो वो सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, उसको पता है उसको आंसर नहीं मिलेगा तो वो मूव्ड ऑन उसने कर दिया। आगे फ्लावर सेलर मिला, फूलों का विक्रेता मिला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम्ड irresistibly डाउन, बच्चा जो था वो सम्मोहित होकर उस चीज को देखने लग गया। He went toward the basket where the flowers lay heaped and half murmured. He went towards the basket. वो बास्केट की तरफ गया जहां पर वो फ्लावर्स थे, जो फूलों का ढेर था वो लगा हुआ था। अब वो फिर आधे मन से फुसफुसा रहा था, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, कि मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना करेंगे फॉर दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, ठीक है, क्योंकि उसे पता था कि वो नहीं दिलवाएंगे, और उसने ये किया, वो ये कहेंगे कि बहुत चीप है, बहुत घटिया है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, उसने कोई वेट नहीं किया, वहां से वो चला गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स। अ स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, अब एक स्नेक चार्मर था, प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक विच coiled itself in a basket, अब एक स्नेक चैम्बर था। अब वो स्नेक चैम्बर क्या था बेटा, वो स्नेक चैम्बर था। अब वो क्या कर रहा था वहां पे, फ्लूट के साथ। Okay, firstly, a man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. अब एक आदमी के हाथ में एक पोल सा था जिसमें उसने येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल बैलून्स जो है वो उड़ा रहा था। The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors and he was filled with an overwhelming desire to process with them all. अब वो वही बात थी कि अब उसको उसका अट्रैक्शन जो है बच्चे का, वो उस रेशमी रंगों के धनुष के जैसे जो उनको गुब्बारे दिख रहे थे ना, अब वो उसको लेने के लिए बहुत इच्छुक था। लेकिन दैट वाज द ओनली पॉइंट दैट बट ही वेल नो न्यू दैट हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बैलून्स, कि उसके पेरेंट्स उसको बैलून्स नहीं लेके देंगे बिकॉज दे वुड से दैट ही वाज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो ऐसे कहेंगे कि अब तो आप बहुत बड़े हो गए हो, ऐसे खिलौनों से क्या खेलना। तो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो फिर आगे चल गया, बढ़ गया। नेक्स्टली अ स्नेक चैम्बर, अब उसको एक सपेरा मिला जो फ्लूट बजा के स्नेक को, जो बास्केट के अंदर कुंडली मार के बैठा था, तो वो जैसे बीन बजा रहा था तो उसका सिर जो है, इट्स हेड रेज्ड इन अ ग्रेसफुल बैंड लाइक अ नेक ऑफ अ स्वैन, वो धीरे से अपना गर्दन जो है वो निकालता मनोहर झुकाव से उठा हुआ रहता, ठीक है। While the music stole into its invisible ears like the gentle rippling of an invisible waterfall, अब वो संगीत जो म्यूजिक था उसके अदृश्य कानों में अदृश्य झरने की हल्की लहर की तरफ जा रहा था। The child went towards the snake chamber, जो चाइल्ड था, बच्चा जो था, वो मुड़ा स्नेक चैम्बर की तरफ, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake chamber played, लेकिन उसे पता था कि मेरे माता पिता मुझे ऐसा बेसुरा संगीत जैसे कि सपेरा बजा रहा है सुनने से मना ही कर देंगे। सो ही प्रोसीडेड फर्दर, अब वो हर जगह से अपना मन मार के आगे आगे चलता जा रहा था। बट लास्टली देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, एक झूला पूरे जोरों शोरों से चल रहा था। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ whirling मोशन, बहुत सारे आदमी, औरतें, बच्चे गोल गोल जो है वो गति से घूम रहे थे, swinged and cried with dizzy laughter. Okay, then
What do I mean to you? Like cried with dizzy laughter. वो क्या कर रहा था? कोशिश कर रहा था कि uh, सब जो थे watch them intently and then he made a bold request. अब उसको देख रहा था कि वो बच्चे कैसे घूम रहे थे, वो कैसे गोल गोल राउंड कर रहा है और वो कैसे हंस रहे हैं, चिल्ला रहे हैं. तो द चाइल्ड वॉच देम. वो बहुत देर तक उनको देखता रहा. देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट. फिर उसने एक दृढ़ जो है ना एक रिक्वेस्ट की. आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज फादर मदर. उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि आई वॉन्ट टू गो ऑन, कि मैं जाना चाहता हूँ. देर वॉज नो रिप्लाई. लेकिन उनकी तरफ से कोई भी आंसर जो था वो नहीं था. He turned to look at his parents. अब क्या हुआ? He turned to look at his parents. वो अपने पेरेंट्स की तरफ जैसे ही मुड़ा, तो उसको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो पीछे मुड़ के अपने पेरेंट्स को देखने लगा. They were not there ahead of him. उसके सामने वो थे ही नहीं, पेरेंट्स थे ही नहीं. He turned to look on other side. वो दूसरी साइड भी देख रहा था. They were not there, but वो वहाँ नहीं थे. He looked behind. उसने पीछे देखा. There was no sign of them. वहाँ पर उनका कोई निशान ही नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat, and with a sudden jerk of his body, he ran from where he stood. एक बहुत ही तेज आवाज से सूखे गले से भरा हुआ वो चिल्लाया. He ran from where he stood. वो अपने शरीर को एक अचानक से झटका देकर वहां से उठा. Crying in real fear. बिल्कुल डर से चिल्लाया. मम्मी पापा. Tears rolled down from his eyes. उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे. Hot and fresh. गर्म और बिल्कुल भीगे हुए चेहरे से. डर से वो बहुत कांप रहा था. His flushed face was convulsed with fear. बहुत डर से भरा हुआ था वो. Panic. बहुत पैनिक हो रहा था. He ran to one side first. वो एक साइड पे भागा. Then to the other. फिर दूसरी साइड पे गया. Hither thither in all directions. इधर उधर हर डायरेक्शन में गया. Knowing not where to go. उसको ये नहीं पता था कि वो कहाँ जाए. He wailed. His yellow turban came untied and his clothes become muddy. उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए थे. अब हुआ क्या कि उसकी आंखों में आंसू जो थे वो बिल्कुल गर्म और भरपूर. उसका भीगा हुआ चेहरा, उसको डर से वो कांप रहा था, बुरी तरह से डरा हुआ था. हर तरफ दौड़ा, ना चाहते हुए, ना जानते हुए कि वो कहाँ जाए. उसको समझ ही नहीं आती. मदर फादर ही वेल्ड. वो रो पड़ा मम्मी पापा चिल्लाते हुए. अब उसकी जो पीली पगड़ी थी was came untied. खुल गई. उसके क्लोथ जो थे वो बिल्कुल मिट्टी से सन गए. Having run to and fro in a rage of running for a while. कुछ देर तक दौड़ने के मतलब उत्तेजित होकर दौड़ इधर उधर दौड़ने के बाद he stood defeated. वो हार कर खड़ा हो गया. His cries suppressed its two sobs. अब उसका जो रोना था ना वो सिसकियों में बदल गया. सुबकियां लेने लग गया. At little distance on the green grass he could see. थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे ग्रीन ग्रास हरे घास पे he could see वो देख सकता था. Throwing his filmy eyes. Men and women talking. कुछ दूरी तक हरी घास पर आंसुओं से धुंधली आंखों से स्त्री और पुरुषों को बातें करते हुए वो देख सकता था. He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes. उसने बहुत ही भड़कीले पीले कपड़ों के धब्बों में देखने की बहुत कोशिश की कि कहीं वो मिल जाए. But there was no sign. लेकिन वहां पे कोई अता पता नहीं था उन लोगों के बीच में उसके मम्मी पापा का. Who seemed to laugh and just talk for the sake of laughing and talking. उसके पिता और माता का कोई नामो निशान नहीं था. बस वहां के जो लोग थे वो बस आपस में हंसी बतिया रहे थे. He ran quickly again. वो फिर जोर से भागा. This time to a shrine to which people seemed to be crowding. इस बार वो एक तेज दौड़ा एक मंदिर की तरफ गया जहाँ पे बहुत भीड़ लगी हुई थी.
Every little inch of space here was congested with men. हर एक इंच का स्थान जो है लोगों से भरा हुआ था. But he ran through people's leg. वो लोगों की टांगों के बीच में से निकल निकल कर भाग कर गया. His little sob lingering mother father. बस सुबकता हुआ सुबकियां लेते हुए मम्मी पापा कहते हुए. Near the entrance of the temple, टेम्पल के प्रवेश द्वार के पास ही, द क्राउड बिकेम वेरी थिक, थोड़ी सी भीड़ कम हो गई. मैन जो स्टिल्ड ईच अदर. अब वो कह रहे हैं कि वो जो भीड़ थी ना वो कम क्या थिक और ज्यादा घनी हो गई कि लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करने लग गए. हैवी मैन with flashing murderous eyes, hefty shoulders, the poor childs struggled to thrust a way between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. He might have been trampled underfoot had he not shrieked at the highest pitch of his voice. Mother, father, a man in the surging crowd heard his cry and stopped with great difficulty, lifted him up in his arm. अब वो कह रहा है कि प्रवेश द्वार के पास तो भी भीड़ बहुत घनी थी. अब चमकती हुई वो हत्यारों जैसी आंखें और बेचारे बच्चे ने अपने पैरों के बीच में से जैसे उस रास्ता बनाया, स्ट्रगल किया और इधर उधर सब लोगों को जो है वो आगे पीछे करके वो भाग रहा था. अचानक वो पैरों के नीचे किसी के पैर के नीचे वो बिल्कुल कुचल जाता, बिल्कुल वो हो जाता, वो बिल्कुल ब्रूटल मूवमेंट्स में था कि वो किसी के पैर के नीचे आ जाता. तो अचानक से यदि वो अपनी आवाज़ करके चीखता नहीं तो भीड़ में से बहुत मुश्किल से उसको क्या हुआ. अ मैन इन द सर्ज क्राउड हियर हिज क्राई. उसने उसकी आवाज को सुना और जैसे उसकी आवाज सुनी उसने तो स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से उसको अपनी बाजुओं में उठा लिया. हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड. आप यहाँ कैसे आए. हुज बेबी यू आर. आप किसके बच्चे हो. द मैन आस्क्ड. ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास. वो उस व्यक्ति ने पूछा जबकि वह लोगों को बचते हुए जो बच्चा था ना वो पहले से भी ज्यादा जोर से रोने लग गया. द सेम क्राइड आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर. अब वो चिल्ला रहा था कि मुझे मेरे पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मी चाहिए. द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट. उस व्यक्ति ने उसको बहुत शांत करने की कोशिश की, उसको झूले पर भी ले गया. विल यू हैव अ राइड ऑन हॉर्स. तुम्हें हॉर्स पर राइडिंग करनी है. ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच्ड द रिंग. रिंग के पास पहुंचते उसने बहुत प्यार से पूछा कि क्या घुड़सवारी करनी है. The child's throat tore into a thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. उसका गला इतना सूख चुका था कि सुबकियां ले रहा था. बस एक ही बात कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. Okay. Now the man headed towards the place where the snake chamber still played on the flute of the swaying cobra. अब आदमी उसको वहां ले गया जहां पर सपेरा बैठा हुआ फ्लूट बजा रहा था अपने कोबरा को कंट्रोल करने के लिए. लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड. उसने प्लीडेड, उसने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की उस बच्चे से कि तुम थोड़ी देर इस म्यूजिक को सुन लो. बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स. उसने अपने कान बंद कर लिए विद फिंगर्स एंड शाउटेड हिज डबल पिच्ड स्ट्रेन. और फिर और जोर से चिल्लाने लग गया कि मुझे मेरे मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए. Then the man took him near the balloons, thinking the bright colors of the balloons could distract the child's attention and quieten him. अब उस आदमी ने कोशिश की कि मैं बैलून्स के पास उसको लेके जाता हूँ, उसको ब्राइट कलर्स के फ्लावर्स भी दिखाए, बैलून्स दिखाए सॉरी, ताकि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए. बट वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बैलून. उससे पूछा कि तुम क्या इन रंग बिरंगे कलर बैलून्स को लेना चाहते हो. Then he said, the child turned his eyes from the flying balloons and just stopped. बच्चा मुड़ा बैलून्स की तरफ बट जस्ट stopped, लेकिन सुबकियां लेता रहा. सेम वही डायलॉग. आई वॉन्ट माई मदर आई वॉन्ट माई फादर. द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी. वो आदमी अभी भी उसको कोशिश कर रहा था खुश करने की. बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर सेलर सेट.
और उसे वहां ले गया जहाँ पे फूलों को बेचने वाला बैठा था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स? वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट अराउंड योर नेक? तुम्हें क्या ये फ्लावर्स चाहिए जिनकी खुशबू इतनी अच्छी है? वुड यू लाइक अ गार्लैंड? क्या तुम ये माला लेना चाहते हो? द चाइल्ड turned his nose away from the basket. उसने अपनी नाक जो है वो बास्केट से हटा ली। एंड reiterated his sob. सेम वही सुबकियां लेता हुआ बोला, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate charge by a gift of sweets, the man took him to the counter of sweet shop also, कि वो स्वीट्स ले ले, स्वीट शॉप पे जाके खुश हो जाए। उससे पूछा, व्हाट स्वीट वुड यू लाइक चाइल्ड? ही आस्क्ड, पूछा उससे कौन सी स्वीट चाहिए। बट द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप। उसने अपना चेहरा वहां से भी हटा लिया और बस ये सब क्या लेता रहा, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। बस एक ही बात, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। I hope you will understand what is the situation of that child. So later on we will continue in our next video. So till then, thank you. Have a nice day.